So how like good is histogram and why exactly we should make the histogram? So what is the purpose of making histogram and what exactly the histogram is going to tell you? And why this histogram is important? Why this is important? Why you should make this? What's the concept of this? What is the advantage you can get out of this? If you can caught some variation in the process, what does it symbolize? So that is something you need to know. Histogram is a type of bar chart. It's a type of bar chart representing the frequency distribution of data from a process. So it's basically a frequency distribution of data. What exactly, why we should make the histogram? What's the purpose of making this histogram? See, the point is that there is a large amount of data that is difficult to interpret in tabular and graphical form, because if you are given just the data, it is very difficult to interpret that. Okay, and shows the relative frequency of occurrence of various data value, provide useful information for understanding present performance and predict future performance. That is very important. So what is the present performance, how it is performing, and what is the future performance? Okay. So now the point is when to use histogram. So when you can use histogram, so when you want to see how your process is behaving and what exactly your process is trying to tell you, and with this histogram you can also make the interpretation. Yes, with this histogram you can make the interpretation. So how good is histogram and what are the steps to make the histogram? Like for example, here you see this is a time period of a person from his office to, so this is a time, okay, this is a time like from his home to office. So he leave maybe whatever time and he reaches the office. So what is the average time in which he is reaching the office? You can see the average time in which he is reaching the office is in between. It takes him 36 to 40 minutes of time. Okay, so that's the average time in which he is reaching the office. So in histogram, what exactly we does? Like in the x-axis, you see there is a interval, there is a class interval. In y-axis, there is a frequency. X-axis is the interval, y-axis is the frequency. That means how many times that particular class or that particular interval is getting repeated. So what will you come to know? You will come to know that this is a type of histogram in which this guy is coming most of the time in between 35 to 36 to 40 minutes. Okay, so it do gives a certain message, it do give a certain message. Okay, and we should know how to make the histogram. Okay, so what happens in histogram, like you can see there in the x-axis you have this class, you have this interval that is called class. In y-axis you have this frequency, that means how many times that particular class is repeating. Okay, here what the example which you have seen, ये जो अभी आपने जो एग्जांपल देखा इसमें आपने देखा कि एक व्यक्ति जो है ऑफिस आ रहा है और कितनी बार जो है वो आपने अलग अलग मिनट्स में डिसाइड कर लिया कि ये एक इंटरवल हो गया 10 से 15 मिनट में, ठीक है, या फिर 15 से 20 मिनट में, या 20 से 25 मिनट में, या 26 से 30 मिनट में, लाइक दैट। ठीक है, अब आप एक चीज और देखो, जस्ट बाय लुकिंग एट हिस्टोग्राम आल्सो you can give some decisions or you will know about data, you will know about what is happening in the process. तो आपके लिए जानना क्या जरूरी है? आपके लिए देखो एज अ एसपीसी जब हम कर रहे हैं ना, तो आप हमारे लिए क्या जानना जरूरी है? एज ए इंजीनियर हमारे लिए जानना जरूरी है कि इसका कंसेप्ट क्या है, इसका यूज हम कैसे कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं, और इसके इस्तेमाल से हम कैसे जो है अपने प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। दैट्स अ मेन पर्पस, राइट? ये हमारे लिए ये मेन पर्पस है। सो अभी यहाँ पे जो है हिस्टोग्राम हम जब बनाएंगे तो एक बार मैं चाहूंगा कि आप उसको एक दूसरे पर्सपेक्टिव से समझें और आप ये देखो हिस्टोग्राम किस प्रकार से आपको किस तरह से कई सारे जो हैं आपको इंफॉर्मेशन दे सकता है, कई सारे आपको डाटा दे सकता है, कई सारी बातें आपको बता सकता है। तो अभी एक एग्जांपल, इसमें जनरल एग्जांपल लूंगा, फिर एक स्पेसिफिक एग्जांपल ले लेंगे, ठीक है? कितने नंबर ऑफ डाटा पॉइंट चाहिए, कितने डाटा चाहिए हमें, हाउ मेनी नंबर ऑफ रीडिंग्स वी रिक्वायर टू मेक द हिस्टोग्राम, how many number of readings we need to make the histogram? 10, 20, 30, minimum 30, 50, higher the better, इसमें कोई दो राय नहीं है। Yes, higher the better.
So if you higher the better, like 50, 60, 80, 100, if you have more data point, then definitely it's better. But right, 50 is something like you get some shape, minimum 30, okay, but 50 is recommended, or maximum you can go up to 100 is great. So here if you talk about like in the same example, you see how by looking at data, by making this histogram, okay, how you can make the interpretation like the, मैंने आपको एक एग्जांपल आपने लिया था ना कि एक्यूरेसी ऑफ प्रिसिजन वाला, जब हम देख रहे थे एक आपने इंटरप्रिटेशन निकालते, तो अभी फॉर एग्जांपल अगर आप अभी आप देखें, ठीक है, तो यहाँ पे हम दोबारा से वो एग्जांपल ले लेते हैं, और करना क्या है आपने, पहले मैं आसान तरीके से बता देता हूँ, फिर इसको जो है एक एक्चुअल एग्जांपल है, फिर उसको करेंगे, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा आप, और ये आपका असाइनमेंट भी है जो आपको करना पड़ेगा, और इसमें कुछ इसमें देयर आर सम इंडिकेशन, लाइक देयर आर सम इंडिकेटर्स आल्सो वी शुड अंडरस्टैंड। तो पहली चीज ये है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक व्यक्ति है, वही वाला एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, उसको मैं दोबारा से स्पेसिफाई कर रहा हूँ, ठीक है, उसको कितना टाइम लगा, तो हमने क्या किया, आपके कंपनी आने का आप भी बना सकते हो, यू कैन आल्सो मेक दिस, आप, मैं चाहूंगा आप बनाएं अगले 20 दिन में, इसको बड़ा प्रैक्टिकल करते हैं, लेट्स डू दिस इन अ प्रैक्टिकल वे। अगले 15 दिन में या 20 दिन ऐसा आप जरूर करो कि आने और जाने का टाइम 10 दिन कर लो, 20 सीटिंग हो जाएगी, आने और जाने का टाइम नोट करो, ठीक है, अपने घर से जब निकलते हो और जो कंपनी पहुंचते हो, और कंपनी से जब निकलते हो घर पहुंचते हो, तो ऐसा आप अपना 10 दिन कर लो, लेट्स सी क्या डाटा आता है। तो लेट्स से एनी वन पर्सन का मान लो कोई भी इस तरह का डाटा निकल के आया, ठीक है, 30, 35, 40, 45, 30, 32, 31, 32, 40, 50, 45, 41, ऐसे करके डाटा आपका निकल के आ गया, ठीक है। आप इसमें एक चीज ऑब्जर्व करो, तो आपने क्या किया, आपने इंटरवल बना दिया, एक्सेस पे आपने क्या किया, इंटरवल बना दिया, वो सब कैसे बनाएंगे मैं सारे आपको बताऊंगा। आपने इंटरवल बना दिया, मान लो 28, 45, तो आपने देखा मिनिमम और मैक्सिमम, आपने इंटरवल बना दिया कि 28 से लेकर 29 तक कितनी बार आया, 30 से लेकर 31 तक में कितनी बार आया, 32 से 33 बार कितनी बार आया, और यहाँ पे आपने जो है ग्राफ प्लॉट कर दिया, राइट दिस सिंपली, आपने उसको ग्राफ प्लॉट कर दिया कि भाई कितनी बार, हाउ मेनी टाइम मैं इस जो है टाइम में आया। ओके, दिस शुड बी लाइक व्हाट, ये किस तरीके से होना चाहिए, एज ए आइडली इट शुड बी लाइक व्हाट, आइडली इट शुड बी लाइक व्हाट, आइडली इट शुड बी लाइक बेल शेप कर्व। व्हाई बेल शेप कर्व, बिकॉज दिस रिप्रेजेंट दैट कि आप जो है मीन के करीब हैं, ओके, एंड देयर इज अ रिपीटिशन ऑफ द प्रोसेस, ठीक है। अभी आई वुड लाइक टू गिव वन एग्जांपल टू यू एंड लेट्स मेक इट। सो व्हाट इज द मेथड एंड हाउ एग्जैक्टली यू नीड टू डू दिस, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, कैसे करना है आपने, और व्हाट इज द मेथड फॉर दिस, ओके। जस्ट लुक हियर, सपोज व्हाट यू डिड, फर्स्ट यू हैव रिटन ऑल द डाटा, whatever data is there, suppose there are 50 ratings, okay, यहाँ पे आपने कोई भी आपने प्रोडक्ट लिया, या आप इनकमिंग में जो आपका जो क्रिटिकल क्वालिटी या कोई ऐसा डायमेंशन है जो कि क्रिटिकल टू क्वालिटी है, कुछ भी हो सकता है, या फिर आपके शॉप फ्लोर में है। तो यहाँ पे जो हम 50 रीडिंग ले रहे हैं, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये 50 रीडिंग जो लेते हैं हम कैसे इकट्ठी करते हैं, आज लिया, कल लिया, परसों लिया, 4 दिन बाद लिया, ऐसा करते हैं, या फिर एक साथ 50-30 सैंपल उठा के उनका हम हिस्टोग्राम बनाते हैं। तो इट्स लाइक दिस, पहला जैसे मैंने आपसे कहा कि पहला ये कि जब डेली, मतलब ऐसा है कि डेली पिकअप करेंगे, और आप गए और कंटिन्यूसली आपने जो है 50 पीस पिकअप कर लिए, पिकअप फ्रॉम लॉट, डेली पिकअप करेंगे से 5 पीसेस पर डे, 5 पीसेस पर डे फॉर 5 डेज फ्रॉम प्रोडक्शन, और पिकअप, और जो आपने 50 पीस कंटिन्यूस अपने लॉट से उठा लिए, जो बना हुआ है या रखा हुआ है, उससे आपने कैसे करेंगे, यही डिफरेंस है। नहीं लेना इसमें हर दिन में 5 सैंपल लेके उसका नहीं बनाना, इट्स नॉट लाइक दैट, अदरवाइज वो तो कंट्रोल प्लान बन जाएगा। तो ये डिफरेंस है दोनों में। हिस्टोग्राम इज मेड, हिस्टोग्राम जो है दैट इज मेड एट ए टाइम, यस,
एंड जो कंट्रोल चार्ट है वो बनता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. हिस्टोग्राम इज मेड at one for one set of data. Histogram is made at one set of data, not over a period of time. So it's not over a period of time. ये बात आप ध्यान दें. Because for that we have control chart. उसके लिए we have the control. We will take the continuous data. You may pick up the sample on continuous basis. और आपको ये नहीं करना कि 5 बजे आपने आज उठाया, 5 बजे कल उठाया, 5 बजे उठाया. It's not like that. आप करना चाहे कर सकते हैं, but that is not the intention. Chart हम daily कर सकते हैं. That is okay. Okay. So histogram is at one point of time. So histogram is basically you are at one point of time. Okay. At one point of time when you are just checking, and then control chart is over a period of time. Control chart जब बोलते हैं that is over a period. तो अभी क्या किया आपने? मान लीजिए जैसे आपका इनकमिंग में आपका कोई प्रोडक्ट आया और इनकमिंग में मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, फास्टनर्स है. Look here, there are fasteners is there and there is one dimension which is across flat है, कोई ऐसे डायमेंशन है तो मान लीजिए आप उस पर कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी डायमेंशन पे आप कर रहे हैं. What you did, you took a lot and you took this number of reading like 50 you took. Now what exactly you need to do? अब करना क्या आपने? How you need to make the histogram and how this has to be made, and this has to be made by you on your actual number of actual dimension. ये आपको बनाना है, actual dimension में आपको बनाना है. ये मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, बता रहा हूँ, लेकिन यू हैव टू मेक इट ऑन एक्चुअल डायमेंशन इन योर कंपनी. यू हैव टू टेक 50 सैंपल्स. यू कैन टेक फ्रॉम इनकमिंग, यू कैन टेक फ्रॉम प्रोडक्शन. ओके. अब व्हाट टू डू, व्हाट आर द स्टेप्स टू बी फॉलोड टू मेक दिस. दो भाग में समझेंगे, पहला स्टेप्स और दूसरा इसका इंटरप्रिटेशन. दो चीजें, पहला स्टेप, दूसरा इंटरप्रिटेशन. राइट. So ready for this? So let's get started. So once you have collected this data, these are the random sample of 50 number of pieces you have picked up. ये जो डायमेंशन जो मेजरमेंट करी है, एक पर्सन करेगा या डिफरेंट पर्सन कर सकते हैं? ये रीडिंग जो आपको मॉनिटर करनी है वो एक बंदे को करनी चाहिए, अलग अलग बंदे को करनी चाहिए. It should be like it's always better. Okay, one different can also do, but here it is preferred that one person should do. अदरवाइज क्या होता है, बाकी जो वेरिएशंस भी आ सकते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है. अगर अदर कर सकते हैं, नहीं, हाँ, 1% मैंडेटरी नहीं है. ओके, 1% मैंडेटरी नहीं है. ओके, मेजरमेंट डेफिनेटली इट इज प्रीफर्ड बट इट इज नॉट मैंडेटरी. यस, 1% इज, इट्स नॉट लाइक दैट, 1% इज नॉट मैंडेटरी. बट इन जनरली व्हाट आई हैव सीन और व्हाट वी सी इज 1% मेजर करता है, मेजर दिस डाटा. क्योंकि क्या है कि अगर आपने वो मेजरमेंट सिस्टम वेरिएशन नहीं होना चाहिए, वो तो वो लोग कॉम्पिटेंट होने चाहिए, उनके बीच में आपस में डिफरेंस नहीं होने चाहिए. yes, better result with 1%, you can say that you will get better result with 1%. okay, this is a better result with 1%. one instrument, same instrument. Okay, same instrument, but not mandatory. But it's not mandatory. Okay, it's not mandatory that you have to do like this. So yeah, 1% you can prefer and one same instrument, but it's not mandatory, right? So अब आप गए, मान लीजिए इनकमिंग इंस्पेक्शन में आप गए, बट एज सच एज ए सेट आप कर सकते हैं, डिफरेंट लोग भी कर सकते हैं. इट्स नॉट मैंडेटरी कि एक ही बंदा करे. डाटा आपका होना चाहिए. there is no mandatory requirement कि अलग करे या एक करे. okay, there is no as such requirement of like this, but yes, generally what is happen, 1% does or one instrument is used when people do this make histogram. okay, now look at that. what you need to do, आपने क्या करना है, आपने 50 पीस आपने लिए, आपने उसका रीडिंग आपने लिखा. रीडिंग लिखने के बाद now what are the steps which you need to follow? So these are the steps. So what is step number 1? Step number 1 is determine maximum and minimum. That's step number 1. यहाँ पे देखिए, please look here. Minimum, maximum. Okay, that is step number 1. Step number 2, आप नोट्स बनाना चाहें प्लीज नोट्स भी बना लीजिए. Step number 2, find out the n. n क्या है? Number of total number of reading.
In this case, what is n? This is count कर लीजिए 50. Okay, that's n. Now you find out the range. Range क्या है? Step 3. Range क्या है? Maximum. जो भी आपकी टोटल रीडिंग है उसमें से मैक्सिमम क्या है और मिनिमम क्या है, यू जस्ट फाइंड आउट दिस. लाइक फॉर एग्जांपल इन दिस रेंज क्या होगी? मैक्सिमम था 47.1 और मिनिमम था आपकी 33.4. ओके, देन नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट. व्हाट इज दिस? दिस इज स्टेप 4. आइडेंटिफाई नंबर ऑफ बिन. नंबर ऑफ बिन मींस हाउ मेनी बार ग्राफ अप्रोक्सीमेट, bar lines or bar will come. How do you identify this? This is square root of n. So number of bin is basically your square root of n. This one. ये वाला. Last step 4. Bin. Identify bin width. Bin width क्या होती है? How do you identify? कि किस इंटरवल में आप बढ़ेंगे. हाउ यू फाइंड आउट? रेंज डिवाइड बाय नंबर ऑफ बिन. सो बिन विड्थ का क्या फॉर्मूला है? स्टेप 4 में बिन विड्थ कैसे कैलकुलेट करेंगे? बिन विड्थ कैसे कैलकुलेट करेंगे? रेंज डिवाइड बाय नंबर ऑफ बिन. रेंज कैसे पता लगा? मैक्सिमम माइनस मिनिमम. बिन विड्थ कैसे पता लगी? Range divided by number of bin. In this example, like you see, sorry, step 5 है. That's step number 5. So how many steps it took? पहला दोबारा repeat करो. First, identify minimum and maximum. Second, identify total number of readings. Third, identify the range, maximum minus minimum. Fourth, identify the number of bins, which is square root of n. Or it's not necessary, you can simply write fourth bin width, which is range divided by number of bin. Range divided by number of bin. Range क्या थी? Range थी 13.7. Okay, कैसे आई 13.7? मैक्सिमम माइनस मिनिमम. नंबर ऑफ bin क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ n, टोटल नंबर ऑफ रीडिंग. bin width क्या है? रेंज डिवाइड बाय नंबर ऑफ bin, यानी 13.7 डिवाइड बाय 7 क्लोज टू 2. तो इससे हमें बिन विड्थ क्यों पता लगानी है? बिन विड्थ से हमें क्या पता लगेगा? बिन विड्थ से हमें पता लगेगा कि जो हमारा जो इंटरवल है वो कितना होना चाहिए. व्हाट शुड बी द इंटरवल? कौन सा इंटरवल? ये जो आपके एक्स एक्सिस में जो इंटरवल आता है ना, कि कितने इंटरवल पे आपको जो है ये हिस्टोग्राम आपको बनाना है, या कितने इंटरवल पे आपको फ्रीक्वेंसी चेक करनी पड़ेगी. ओके, सो दैट्स द रीजन व्हाई वी रिक्वायर बिन विड्थ. तो जो नंबर ऑफ बिन है क्या वो फिक्स है? नहीं. 7 है, 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है. इट्स नॉट लाइक दैट. बिन विड्थ आपको 2 रखनी है तो इट्स फिक्स. यस, यू शुड ट्राई टू कीप इट, बट इट इज जस्ट एन अप्रोक्सीमेशन. अब आपने क्या देखा? आपने देखा मिनिमम आपका कितना था? हाउ मच वाज मिनिमम? मिनिमम वाज 33. तो आपने देखा 33 से लेकर 34.9 तक कितने हैं? 0 हैं. देन यू सॉ कि 35 से लेकर, इट इज बेसिकली 35 से लेकर 36.9 कितने? 9 कितने हैं? 5. सो दिस यू कैन आइडेंटिफाई. ओके, ये आप कंप्यूटर से, लैपटॉप से या इस तरीके से आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं. गॉट एन आइडिया? क्या किया है? व्हाट वी डिड सिंपली एक्स एक्सिस में क्या आ गया? बिन आ गए. वाई एक्सिस में क्या आ गया? फ्रीक्वेंसी आ गया. तो हिस्टोग्राम में क्या प्लॉट कर रहे हैं? एक्स एक्सिस में यू हैव द bin, y axis में you have the frequency. Okay, and that's how you will get this histogram. That's how you will get this shape.